مرزا ریاض الحسن افندی صاحب مرسی، محمد بیگ صاحب مرسی، مجلسی کارپوریٹ کا صدور معتمدین محبان مجلس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم کے خصوصی انتظامات کے ضمن میں یہ اجلاس ہر سال کی طرح منعقد کیا گیا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سالار ملت کے دور میں ان کی اجازت سے، ان کی ہدایت پر یہ اجلاس منعقد ہوتے تھے، جبکہ حکومتوں کی طرف سے اجلاس نہیں ہوتے تھے۔ جب اس کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، کیونکہ حیدرآباد کا محرم، دلی کی دیوالی، میسور کا دسہرہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں نمایاں، اس لیے وسیع سے وسیع تر انتظامات کیے جاتے ہیں، اور محبان اہل بیت بلا لحاظ مذہب و ملت بے شمار تعداد میں موجود ہے، اور ان کی عقیدت کا احترام کرتے ہوئے زائرین کو، رضاداروں کو سہولت پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ تو میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم کے جتنے انتظامات ہوتے ہیں، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس، رکن پارلیمنٹ کی ہدایت اور ان کی نمائندگی پر بہت سارے کام منظور ہو چکے اور کچھ ٹینڈر لگنے کے بھی ہیں۔ تقریباً 8 کروڑ کے کام اس ضمن میں منظوری عمل میں لائی گئی، اور اس میں نمایاں خدمات مجلس کے اراکین اسمبلی کے علاوہ جناب ریاض الحسن افندی اور علمدار والا جائی، ہمارے سہیل قادری، باسر صاحب، ہمارے جو کارپوریٹرز ہیں، جہاں جہاں ان کے ایریے میں عاشور خانے ہیں، وہاں کے انتظامات کی فہرست بنا کر صدر صاحب کی نمائندگی پر اس کی منظوری حاصل کی ہے۔ بہرحال اس اجلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے چوک ہو گئی یا ہم سے کچھ مسئلہ چھوڑ گیا ہے تو آپ لوگوں کی یاد دہانی سے اس کو بھی دوبارہ شامل کر لیں گے۔ اس لیے ہمارے پاس میٹنگ کے اختتام میں ہمیشہ تحریری نمائندگیاں بھی شروع کرتے ہیں، اور اس کو بھی جلد سے جلد تکمیل کرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی، پہلی مرتبہ کافی محرم سے پہلے ہوئی، اور اس میں بہت سارے مسائل کو مجلس کی طرف سے یاد دہانی کی گئی اور اس کی منظوریاں بھی حاصل ہوئے۔ برقی کا انتظام انتہائی ساؤتھ زون میں ٹھیک نہیں ہے، اور اس میٹنگ میں ہم نے بتایا کہ ٹیمپروری جو ارینجمنٹ ہوتا ہے موبائل ٹرانسفارمر لگا کے، اور جو لائٹ ٹیمپروری لگائی جاتی ہے عاشور خانوں کے پاس، اس کے لیے ٹرانسفارمر بہت ضروری ہے، لیکن مستقل حل اس کا بھی ہونا چاہیے کہ روزانہ مسلسل کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی وقت پر 2 گھنٹے 1 گھنٹہ لائٹ بند ہو جاتی ہے پرانے شہر میں۔ اس کے لیے ہم حکومت سے نمائندگی، اس سے پہلے کہ اسمبلی سیشن میں بھی اس کا اعلان کیا تھا، توجہ دلائی تھی۔ برق دیری کا مسئلہ ہے پرانے شہر کی لائٹ کا، اور اس کا مینٹیننس برابر نہیں ہوتا۔ البتہ رمضان محرم کے دنوں میں ہمیشہ کی طرح برسوں سے سالار ملت نے اس کی نمائندگی کی تھی کہ بلدیہ کے دفتر سردار محل میں اس کا کنٹرول روم قائم کیا جائے، اور پورے ایام عزاداری کے دوران ہر محکمے کا ایک آفیسر وہاں پر رہنا، ایمرجنسی میں اگر کوئی صورتحال پیدا ہو فوری آفیسر کے رابطے میں رکھ کر وہ کام کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی حکومت نے اعلان کیا سردار محل کے پاس کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔ ہمارے ریاض الحسن افندی صاحب کی ایک نمائندگی ہے، انہوں نے بھی نمائندگی کی کہ کنٹرول روم کو رکھتے ہوئے ایک دارالشفا کی سائٹ پہ وہاں پر بھی ایک کنٹرول روم ایمرجنسی کا قائم کیا جائے۔ تو اس ضمن میں مشاورت کی گئی، آفیسروں سے کوشش جاری ہے۔
तो साथ साथ पानी के मसले के लिए भी आबरसानी के लोगों को नुमाइंदगी की गई। जहाँ भी सभी रखते हैं वहाँ पर वाटर टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जाए। हर साल की तरह इस साल भी आशूरे को अरबईन में अभी भी मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। मुकर्रर मजलिस पार्टी की हिदायत पर अज़ादारों के लिए एक मेडिकल टीम कायम किया जाता है जो पूरे जुलूस के साथ रहता है। आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक जुलूस में वो मेडिकल टीम काम करता है। असरा के अवैसी के हॉस्पिटल वहाँ पर खिदमत करते हैं। अभी भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हिदायत दी कि हर साल की तरह इस साल भी असरा और अवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम मेडिकल टीम जुलूस में शामिल रहेंगे और वो अपने खिदमत को पेश करेंगे। बल्दिया की तरफ से सफाई के लिए खुसूसी इंतजाम के लिए तवज्जो दिलाई गई है। 2 टाइम जिस तरीके से रमज़ान में 2 टाइम सफाई होती है सुबह और शाम, उसी तरीके से मुहर्रम के अय्याम अज़ादारी में जहाँ बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं वहाँ पे 2 टाइम की सफाई का इंतजाम करना और गार्बेज की लिफ्टिंग का इंतजाम माकूल होना चाहिए। दवाओं का छिड़काव होना चाहिए। बल्दिया की तरफ से भी मुख्तलिफ मेडिकल कैंप कायम किए जाते हैं मजलिस की नुमाइंदगी पर। इस साल भी वो कायम किए गए। अभी बस बेशुमार मसाइल उसकी तफसील अफंदी साहब आपको बताएंगे। खुसूसन हाथी के इंतजाम के लिए सालाना नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर हर साल किया जाता है और उसके लिए सदर साहब की हिदायत पर अफंदी साहब काफ़ी वक्त देते हैं, कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह इस साल भी वैसे ही होगा। पिछले साल बड़े पैमाने पर इंतज़ाम करके हाथी का इंतज़ाम किया गया था। इंशाअल्लाह आपके भी वो इंतज़ाम हो जाएगा, अल्लाह का करम रहेगा। तो मैं ये चंद बातों के साथ मसाइल बहुत है, वक्त ज़्यादा लगेगा। हमारे साथी MLA और अफंदी साहब ओवैसी को भी अगर इज़हार ख्याल का इरादा है तो उनसे भी ज़्यादा समाप्त कर रहा। मैं मुमताज़ खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको मुखातिब करूँ। मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब, मोहतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा, रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, रहमत बेग साहब MLC, मेरे साथी कारपोरेटर, तमाम आशुर खानेदार के हजरात, जिम्मेदारान, जैसा कि अभी अहमद पाशा कादरी साहब ने तमाम तफसील रखी और अल्लाह के फजल करम से हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आप लोगों के जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी काम हैं, उसकी तकमील के लिए नुमाइंदगी की जाती। इस मरतबा भी हमारी जानिब से जो हमको मालूमात हासिल हुए हम वो लेटर तमाम हुकूमत को दे चुके हैं। जैसा कि अभी अहमद पाशा कादरी साहब ने तमाम तफसील आपके सामने रखी, इससे हटकर भी आपके अगर कोई दूसरे मसाइल हैं तो मीटिंग बुलाने का मकसद यही होता है कि जो भी आपके दूसरे काम हैं वो काम को मालूम करके उस ताल्लुक़ से भी नुमाइंदगी करके उसको भी मंजूर करवाया जाए। जैसा कि रियाजुल हसन अफंदी साहब आपके तमाम जिम्मेदारी के साथ पूरा काम निभा रहे हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जो भी आपकी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं उससे हटकर, जैसा कि अभी अहमद पाशा कादरी ने कहे कि आप लोग रेटिंग के अंदर जो भी आपके कामों के ताल्लुक़ से आप देंगे तो इंशाअल्लाह अगर हमारे कामों के अंदर वो काम नहीं शरीक है तो उन कामों को भी देकर आपके काम मंजूर करवाए जाएंगे। शुक्रिया। खुदा जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मुतमद्दे उमूमी MLA याकुतपुरा, जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA चारमीनार, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब सोहेल कादरी साहब, जनाब अलमदार वाला जई साहब और तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और जितने आशू खानों के ज़िम्मेदार हजरात आए हैं, सबको मेरा सलाम। आज
सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर हर साल की तरह इस साल इंस्ट्रूमेंट्स भी बन चुके हैं और उसमें तकरीबन कामों की मंजूरी भी हो चुकी है। आज से 2 दिन पहले हुकूमत तेलंगाना की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी मैंने ख़ास तौर पर ये बताया कि साउथ जोन एरिया में जितने मेन रोड्स है वो मेन रोड्स के ऊपर रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। जहाँ पर मॉडर्न लाइट है वो काम नहीं कर रहे, उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। और कई बार ऑफिसरों को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहा, और जब भी पूछे टाइमर्स चले गए, केबल चले गया बोलकर ऑफिसर आए बोल रहे। मगर मैं ऑफिसरों को बोलना चाह रहा हूँ कि साउथ जोन के जितने मेन रोड्स है, आरामगढ़ से लेके पुराना पुल से हाई कोर्ट रोड, हाई कोर्ट से मदीना से चार मीनार, गुलदार हाउस, शालीबंडा, और ये मिराना मंडी की जो रोड है मुगलपुरे से पूरा खजा खाना दहरा और वहाँ से चादर घाट तक, इन रोडों के ऊपर रोशनी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जहाँ पर आपको मेंटेनेंस नहीं हो रहा वहाँ पर टेम्पररी लाइटिंग लगाई है। और ख़ास तौर पर सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर जितने आशुखाने हैं साउथ जोन के, उन आशुखानों में टेम्पररी लाइटिंग के ताल्लुक से तकरीबन 70 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट बना, उसकी मंजूरी भी हो चुकी और उसका टेंडर भी हो चुका। और इसके ऊपर भी मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर नज़र रखिए। जहाँ पर जिस आशुखाने में 20 लाइट लगाना है या बाद जगह 50 लाइट लगाना है, बाद जगह 100 लाइट लगाना है, आप लोग देखिए वहाँ पर जाकर। ये नहीं कि टेंडर करा दे रहे, लाइटां लगा लो बोल रहे, उन्होंने जिसको टेंडर आ रहा उनके हिसाब से काम कर रहे, ये चलने वाला नहीं है। मैं भी इसके ऊपर ख़ास तौर पर सदर मोहतरम की हिदायत है मुझे, ये कामों के ऊपर मैं भी नज़र रखूँगा। दूसरी चीज़, GHMC के जितने काम जो मंजूर है वो कामों के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, साउथ जोन के ईस है, वो लोग जल्दी टेंडर बुलाना चाहिए, क्योंकि हमने मीटिंग में भी बताया कि शार्ट टेंडर लगाकर वो कामों को करिए। ये नहीं कि रमज़ान ये में जैसा हुआ बकरीद में भी सेंक्शन दे रहे, टेंडर हो रहा, कंट्रैक्टर डाल रहा है नहीं डाल रहा, फिर उसके बाद बकरीद के अपने मुहर्रम के बाद वो कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं सख्त तौर पर कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने काम मंजूर हुए वो काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि खाली टेंडर करा के बैठ गए, इसके ऊपर भी नोट लिया जाएगा, ऑफिसरों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। जो ऑफिसर काम से नज़रअंदाज कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, उसके ऊपर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर नज़र रखेगी, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए के सेंक्शन जो ला रहे हैं काम करवाने के लिए ला रहे हैं। ये नहीं कि खाली आप ला रहे लिस्ट बता के हमारे को खुश करते रहे, ये चलने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरे, जैसा कि अब GHMC में असिस्टेंट इंजीनियर है, डिप्टी है, ई है, खाली लोग फ़ोनों पे काम कर रहे, फील्ड पे कोई नहीं जा रहा, बात करते कि वर्किंग इंस्पेक्टर को भिजा दे रहे, तो ये चलने वाला नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जो है वो काम करिए। और ख़ास तौर पर वाटर वर्क्स के ताल्लुक से जो बताया गया कि पानी के बॉटल्स का कि 50 लाख बॉटल्स दे रहे थे, उसको 1 करोड़ किया जाए, उस ताल्लुक से भी मैं CGM साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो बॉटल जिन जिन एरियो में कहाँ पर आप कैंप्स डाल रहे, जुलूस कहाँ से जा रहा, ये पूरा देखकर उसको करना चाहिए। और एक चीज़ भी इलेक्ट्रिकल का ख़ास तौर पर जनाब सैयद अहमद पाशा खाजी साहब बता रहे थे कि याकूतपुरे के ताल्लुक से, मगर पूरे साउथ जोन में इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कल ही रात में बारिश हुई, हवा चली
पूरी रात में जगे हुआ था, कोई ऑफिसर फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। ख़ास तौर पर चांद मीनार एरिया के जो ऑफिसर्स है, चांद मीनार डी साहब, उनके एडीज और असिस्टेंट इंजीनियर, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं चलेगा और इन लोगों के ऊपर भी बराबर सदर मोहतरम को रिपोर्ट देंगे, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मेरा आज के इजलास के निगरानी कर जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, MLA मोहतरम से इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब मुमताज़ अंसार MLA चारमीनार, जनाब रियाजुल हसन बंदी साहब MLC, जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब MLC और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ख़ास तौर से आज के इजलास में शरीक होने वाले तमाम आशुर खाने के ज़िम्मेदारान और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ हैं। आज की मीटिंग का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से इत्तेहाद मुस्लिमीन का दोबारा आया हुआ फ़ख्र मिल्लत और सहारे मिल्लत के इन लोगों की ख़ास हिदायत पर हर साल मुहर्रम की मीटिंग दारुस्सलाम में मुनक़िद की जाती है। उस सिलसिले के अंदर तमाम ऑफिसर्स को भी बुलाया जाता है और जितने भी आशुर खाने के ज़िम्मेदारान हैं उनको बुलाते हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उनसे दरख्वास्तें लेती है और उसके बाद उनके जो काम है इसी ऑफिसर्स को कह के वो काम को अंजाम देती है। और ताकि मुहर्रम का जो महीना होता है उस महीने के अंदर जितने लोग मातम करते हैं या मजालिस होते हैं उन सबको किस तरीके से बेहतर इंतज़ाम कराने के लिए इजलास मुनक़्क़िद किया जाता है। उसी के सिलसिले में आपने तमाम लोगों से सुना है कि क्या क्या काम है। अभी पेश मुक़र्रिर MLC साहब ने तफसीली रोशनी डाली कामों के बारे में। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यही कहना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो सदर हो, एरिया के मोहतमद हो, उसके अलावा ख़ास तौर से जो रोल रहता है हमारे कारपोरेटर हज़रात जो एरिया में मौजूद रहते हैं, तो मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मुझे पूरा भरोसा भी हमारे कारपोरेटर्स के ऊपर, ये लोग भी एरिया के अंदर रहते हैं, MLA हज़रात भी रहते हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान भी रहते हैं। तो हम ये मुहर्रम का जो महीना है इसके अंदर ख़ास तौर से दिलचस्पी लेंगे और अच्छे से अच्छा काम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर साल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहती है और आपके तकालीफ को महसूस करते हुए उसको कैसे दूर करना है उसकी पूरी कोशिश करते हैं। जैसा 2 दिन पहले तेलंगाना गवर्नमेंट के जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें कुछ हमारे भाई लोग भी आए थे और हम लोग भी मौजूद थे। उसके अंदर हमारी पार्टी के जानिब से जो मसाइल थे उस मसाइल को उठाया गया, उस मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत से हम बाज़ाब्ता उनसे एग्री कराए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको तो मालूम है, इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपके दरमियान में रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो अब के मुहर्रम के अंदर, चूँकि मेरा मेन ऑफिसरों को एक रिक्वेस्ट है, ये मुहर्रम का जो अभी महीना आ रहा है ये बरसात में आ रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सीवियर ओवरफ्लो का होता है, SW ड्रेन ओवरफ्लो का होता है, नाला ओवरफ्लो का। इसके ऊपर अपन अगर पहले से दिलचस्पी ले लेते हैं, इसको ठीक करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब की मरतबा अगर चैलेंज अगर किसी को है तो मेरी नज़र के अंदर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चैलेंज है। वाटर वर्क्स को इसीलिए चैलेंज है कि ओवरफ्लो की रेगुलर शिकायत होती है, एक मैनुअल अगर ओवरफ्लो होता है तो उसका जो ओवरफ्लो का पानी जाता है वो काफ़ी दूर तक जाता है। तो इसके लिए हम अगर साथ ही साथ अगर उसको ट्रीट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बरसात के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को चैलेंज इसलिए होता है कि अक्सर ट्रिप होती है बारिश के अंदर और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, प्लांट झाड़ गिर के भी लाइन में प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा और ये सब चीज़ के लिए आप लोग अगर मॉनिटर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर अब की मरतबा इंशाअल्लाह पहले से बेहतर इंतज़ाम करा के आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नशीन प्रदर्शन फरमा आली जनाब जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो MLA याकुबपुरा, आली जनाब इज़्ज़त इमाम जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA चारमीनार, जनाब जाफ़र हुसैन हिरा साहब
MLA नामपल्ली जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब MLC, जनाब सोहेल कादरी साहब, अलमदार वाला जाही साहब, वासे साहब कॉरपोरेटर, यहाँ पर मौजूद तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और तमाम आशो खाने जात के तमाम मुतवलियान ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम तमाम बखूबी जानते हैं और यहाँ पर जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब ने आप तमाम के सामने तमाम तफसीलात को रखा। मैं भी यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम अरेंजमेंट्स के लिए, अय्याम अज़ा के लिए, इंतज़ामात के लिए मीटिंग मुनक़िद की जाती है। और ये सिलसिला आज कल का नहीं बल्कि क़दीम सिलसिला है। और यकीनन मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको ये मौका फराहम फरमाया कि हम तमाम मिलकर अय्याम अज़ा के इंतज़ामात के खिदमत अंजाम देते हैं। यकीनन एक तफसील आप तमाम वाकिफ़ हो चुके हैं। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मोहतरम रुकन पार्लिमेंट वाली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर चंद्रन गोटा, MLA चंद्रन गोटा की हिदायतों पर हमने पहले ही तमाम एस्टिमेट्स बनाने के लिए GHMC को नुमाइंदगी की। अल्हम्दुलिल्लाह एस्टिमेट्स भी बन गए, सेशंस भी हुए हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में टेंडर्स का प्रोसेस भी किया जाएगा। और हमारी जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हमने ये कह दिया है कि तमाम MLAs की जानिब से ये बात हो चुकी है कि टेंडर्स, शॉर्ट टेंडर्स लगाया जाए। उसमें शामिल रहेंगे और वो अपनी खिदमत को पेश करेंगे। बल्दिया की तरफ से सफाई के लिए खुसूसी इंतजाम के लिए तवज्जो दी जाएगी। 2 टाइम जिस तरीके से रमज़ान में 2 टाइम सफाई होती है सुबह और शाम, उसी तरीके से मुहर्रम के अभी अय्याम अज़ा तारीख में जहाँ बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं वहाँ पर 2 टाइम सफाई का इंतजाम करना और गार्बेज की लिफ्टिंग का भी इंतजाम माकूल होना चाहिए। दवाओं का छिड़काव होना चाहिए। बल्दिया की तरफ से भी मुख्तलिफ या समाज करने में मुमताज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको खातिम में पूरी रात भर लाइट बंद थी, कोई ऑफिसर आने के लिए तैयार नहीं है, ना फ़ोन उठाने के लिए तैयार है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोग तवज्जो दीजिए। जहाँ पर जिस आशुखाने में 20 लाइट लगाना है, या बाद जगह 50 लाइट लगाना है, बाद जगह 100 लाइट लगाना है, आप लोग देखिए वहाँ पर जाकर। ये नहीं उन्हें टेंडर करा दे रहे, लाइटा लगा लो बोल रहे, उन्होंने जिसको टेंडर आना उनके हिसाब से काम कर रहे, ये चलने वाला नहीं है। मैं भी इसके ऊपर ख़ास तौर पर सदर मोहतरम की हिदायत है मुझे, ये कामों के ऊपर मैं भी नज़र रखूँगा। दूसरी चीज़, GHMC के जितने कामा जो मंजूर है वो कामों के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, साउथ जोन के ईस्ट है, वो लोग जल्दी टेंडर बुलाना चाहिए। क्योंकि हमने मीटिंग में भी बताया कि शार्ट टेंडर लगाकर वो कामों को करिए। ये नहीं कि रमज़ान में जैसा हुआ बकरीद में भी सिंचन दे दे रहे, टेंडर हो रहा, कंट्रैक्टर डाल रहा है नहीं डाल रहा, फिर उसके बाद बकरीद के अपने मुहर्रम के बाद वो कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं सख्त तौर पर कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने काम मंजूर हुए वो काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि खाली टेंडर करा के बैठ गए, इसके ऊपर भी नोट लिया बार बार नजर रखेगी। क्योंकि इतने करोड़ों रुपये के शिक्षण जो ला रहे हैं, काम करवाने के लिए ला रहे हैं, ये नहीं कि खाली आप ला रहे हैं। आज दारुसलाम में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लिमेंट की सरपरस्ती में मुहर्रम के खुसूसी इंतजामात की मीटिंग हर साल की तरह इस साल भी हुई, जिसमें मजलिस के तमाम अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर, सदर मोहतमदीन और महिबान अहले बैत
कसीर तादाद में शिरकत की है। ये मीटिंग हर साल मुनक़िद की जाती है। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन नक्शी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से सालार मिल्लत ने इसका आगाज़ किया था। गवर्नमेंट में मीटिंगां नहीं होते थे जब मजलिस करती थी, अब गवर्नमेंट भी हो रही है। बहरहाल मकसद ये है कि अज़ादारों को मुहर्रम के तमाम ज़ायरीन को बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल से कोई तकलीफ़ ना हो, उन कामों की तकमील करके उनको राहत पहुंचाना, उनको सहूलत पहुंचाना, ये मीटिंग का मकसद है। मुहर्रम से पहले नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलमदार वाला जाई साहब, बासिर साहब, सोहेल क़ादरी साहब, हमारे कॉरपोरेटर MLAs, ये सब मुहर्रम के खुसूसी इंतज़ामात के एस्टीमेट बनाकर नक़ीब मिल्लत की नुमाइंदगी में इसको मंजूरी हासिल की। अब फ़िलवक्त 8 करोड़ रुपए की लागत से काम मंजूर हो चुके हैं, अभी बहुत सारे होने के हैं। ये 8 करोड़ के काम का टेंडर हो जाएगा, वो काम मुहर्रम से पहले शुरू भी होगा, तकमील भी पाएंगा, कोशिश कर रहे हैं। बाकी काम भी इसी तरीके से काम अंजाम दिए जाएंगे। महकमे बल्दी आबरसानी, वाटर वर्क, आबरसानी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बल्दिया, ये तमाम ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। इनको निशानदेही की गई कहाँ कहाँ क्या काम है और इसकी तकमील करने के लिए पाबंद किया गया है। और कोशिश इस बात की जा रही है कि सबसे बड़ा मसला सफाई का है, सैनिटेशन का है, और एक वाटर पोल्यूशन का, जिस तरीके से ड्रेनेज के पानी ओवरफ्लो होता है उसके वो अहम इमरजेंसी में काम करने के लिए हिदायत दी गई है। और कोशिश इस बात की जा रही है कि तमाम अज़ादारी के अय्याम में किसी किस्म के भी कोई मसाइल पैदा ना हो, तमाम मसाइल की यकसी हो जाए, लोगों को राहत पहुँचाए। बस, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए आज एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तमाम आशुर खाने के ज़िम्मेदारान, तमाम ऑफ़िसर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs, कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। और ये मीटिंग में जो काम हो चुके हैं उनका ज़िक्र किया गया, और जो काम आज याद दिलाई गई, याददही की गई, उन कामों को भी इसमें जो है शामिल किया जाएगा। मैं इस मौके पर तमाम शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।